ایک طرف ملک بھر میں آٹا اور گندم نایاب تو دوسری جانب اوکاڑا میں پاسکو گودام سے 400 کے قریب گندم کی بوریاں چوری کر کے بیچی جانے لگی۔ اوکاڑا میں پاسکو گودام سے 2.5 ماہ کے دوران لاکھوں روپے کی گندم چوری کر کے فروخت کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ درخواست گزار کے مطابق پاسکو سینٹر ملازمین پرائیویٹ افراد کے ساتھ مل کر عرصہ دراز سے کروڑوں روپے کی گندم چوری کر کے فروخت کر چکے ہیں۔ واقعے کے خلاف شہری کی جانب سے ایم ڈی پاسکو اور پولیس کو درخواستیں بھی گزاری گئیں، تاحال کوئی بھی کارروائی عمل میں نہ لائی جا سکی۔ نگر میں پیٹرول کا بحران بدستور جاری ہے۔ پیٹرول کے حصول کے لیے پمپس پر شہریوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں۔ رپورٹ کریں گے راجہ کوکب افتخار۔ حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑا اضافہ کرنے کے باوجود ملک کے دیگر شہروں کی طرح بہاول نگر میں بھی پیٹرول کا مصنوعی بحران پیدا کر دیا گیا ہے۔ شہر اور گرد و نواح میں 90% پیٹرول پمپس مالکان نے پیٹرول کی سپلائی معطل کر دی ہے، جبکہ چند پیٹرول پمپس ہی پیٹرول مہیا کر رہے ہیں، جہاں موٹر سائیکل کو صرف 100 روپے جبکہ کار سمیت دیگر گاڑیوں کو 500 روپے کا پیٹرول دیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ سے طلبہ کو تعلیمی اداروں اور مریضوں کو اسپتال پہنچنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا کا کہنا تھا کہ پیٹرول کے حصول کے لیے گھنٹوں لائنوں میں لگے رہنے کے باوجود پیٹرول نہیں مل رہا۔ پیٹرول مالکان بھی جون سے ہیں جان بوجھ کے مہنگائی کیے ہوا ہے، اپنے منافع کے لیے عام عوام کو انہوں نے ذلیل کیا ہوا ہے۔ یہاں کمانے کے لیے آیا ہوں، شام کو میرے بچوں کی روٹی کا خرچہ بھی نہیں نکلتا، ایسی زندگی سے تو موت بہتر ہے۔ ضلعی انتظامیہ بالخصوص نئے تعینات ہونے والے ڈپٹی کمشنر بہاول نگر کی جانب سے پیٹرول کے مصنوعی بحران پر کسی قسم کے ایکشن نہ لینے پر شہری سراپا احتجاج ہیں۔ کیمرامین عبدالوحید کے ساتھ راجہ کوکب افتخار، سچ نیوز، بہاول نگر۔ لیا میں پیٹرولی مصنوعات کا بحران برقرار ہے۔ پولیس کی جانب سے پیٹرول پمپ مالکان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ لیا سے ظہور دورانی کی رپورٹ دیکھیے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی پریشانوں میں اضافہ کر پیٹرول پمپ پیٹرول دستیاب ہیں، جن پر دستیاب ہے تو لمبی لائنیں لگی ہیں۔ دوسری جانب پولیس نے مبینہ طور پر پیٹرولیم مصنوعات ذخیرہ کرنے والے پیٹرول پمپس کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 11 پیٹرول پمپ مالکان کے خلاف مقدمات درج کیے۔ تھانہ سٹی کے حدود میں 4 پیٹرولیم ڈیلرز کا کہنا ہے کمپنی کو جانب سے سپلائی نہیں دی جا رہی، جس کا نزلہ پیٹرول پمپ مالکان پر گرایا جا رہا ہے۔ جب پروڈکٹ ملی نہیں رہی تو اس کی فروخت کیسی؟ سپلائی نہ ملنے کے سبب کاروبار نقصان میں جا رہا ہے تو دوسری طرف مقدمات درج کر کے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کیمرامین زبیر لشکرانی کے ساتھ ظہور دورانی، سچ نیوز، لیا۔ کھاد کا بحران، کسان پریشان۔ دائرہ دین پناہ اور گرد و نواح میں کھاد کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ کسان کھاد کے حصول کے لیے رول گئے ہیں، جبکہ ڈیلر سرے عام کھاد بلیک میں فروخت کرنے لگے ہیں۔ عارف بلوچ کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ حکومت جس کی بھی ہو، لیکن دائرہ دین پناہ کے کسان ہمیشہ کھاد نیاب کا رونا روتے نظر آتے ہیں۔ دائرہ دین پناہ میں یوریا کھاد کا بحران بدستور جاری ہے۔ یوریا کھاد سرکاری ریٹ کی بجائے 3000 سے 3200 میں بلیک میں فروخت کی جانے لگی۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ بر وقت یوریا کھاد دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے گندم کی فصل متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ مہربانی کرے حکومت سنال کوشش کرے جو ساکوں سستے سونے ریٹ تے کھاد مل ونجے نہ تو سارے فصل گلتے پن، اساں کیا کرے سوں۔ کسانوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے فوری طور پر یوریا کھاد کے ریٹ کو کنٹرول کرنے اور مارکیٹ میں فراہمی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عارف بلوچ، سچ نیوز، دائرہ دین پناہ۔ پنڈی بھٹیاں میں کھاد مافیا بے لگام ہو گئے۔ کھاد کا فی بیگ 3500 روپے میں فروخت ہونے لگا ہے۔ گراں فروش عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ رپورٹ رہے ہیں رائے عابد کھرل۔ پنڈی بھٹیاں میں کھاد کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ کسان کا ایک بیگ حاصل کرنے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ انتظامیہ کی غفلت یا ملی بھگت غریب کسان 2250 روپے میں ملنے والا یوریا کھاد کا ایک بیگ 3500 سے 3600 روپے میں خریدنے پر مجبور ہے۔ انہوں ملدی ہے کہ جڑا 3500 تو بھی اتنے دے وے تے باقی کچھ فارش ہوئے ان جو کھاد نہیں ملدی۔ اسی صاحب اگے ڈی سی صاحب اگے ساڈی اپیل ہے کہ مہربانی کر کے انہوں دے ذرا گودام ویکھ لیں تو سانو کھاد لے کے دین، مہربانی ہوئے۔ کھاد مافیا کھاد بلیک دے رہا ہے، عام عوام نو کھاد نہیں مل رہی، وہ بھی 3500 تو ابو۔
अगर किसी तुम तरला मेहनत करके तुम लभ जाती है तो नहीं तो खाद। एक तरफ किसान दिन भर के काम काज छोड़कर खाद के असूल के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़ा रहने पर मजबूर है, तो दूसरी जानब खाद डीलर और इंतजामिया मनपसंद अफराद और काश्तकारों को नवाजने में मसरूफ है। किसानों का ये कहना है कि बर वक्त खाद मुयस्सर न आने के बायस गंदम की फसल तबाही के दाने पर पहुंच चुकी है, जबकि पैदावार में भी खतरनाक हद तक कमी वाक़या होने का अंदेशा है। किसानों ने हुक्मरानों से खाद के इस मसनूई बहरान को तरजीह बुनियादों पर हल करने के लिए अपील की है। कैमरा टीम के साथ आबिद खरल, सच न्यूज, पिंडी भटिया। महंगाई ने सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। कोटली आज़ाद कश्मीर में अशिया खुरनोश के नर्ख आसमान पर पहुंच गए। आवाम की कुव्वत खरीद जवाब दे गई। रिपोर्ट करेंगे शम्स मलिक। आज़ाद कश्मीर कोटली में एक तरफ बेरोजगारी अरूज पर पहुंच चुकी है और दूसरी तरफ खुर्दनोश की बढ़ती हुई कीमतों ने आवाम को अपनी लपेट में ले लिया है। खुर्दनोश की एशिया में आटा, प्याज, दाल, चावल, चीनी, गोश्त की कीमतों में इजाफे की वजह से मजदूर तबका महंगाई की चक्की में पिसकर रह गया। पेट्रोल की कीमतों में भी आए रोज इजाफा और अदम दस्तयाबी की वजह से लोगों की हिम्मत जवाब देने लगी। सरकारी आटा डिपो में आता तो है मगर गरीब आवाम इससे मुस्तफीद नहीं हो पाती। आटे के हसूल के लिए भी लोगों को शदीद मुश्किलात दरपेश है। आटे के लिए बहुत ही परेशान है। वो जो परमिट वाले लोग हैं उनसे आटा नहीं मिलता है। आवाम का कहना है कि अगर हुकूमती सतह पर हंगामी इकदाम किए जाएं तो आवाम के बहुत से मसाइल का हल हो सकता है। कैमरा टीम के हमरा शम्स मलिक, सच न्यूज, कोटली, आज़ाद कश्मीर। पाकपतन में क़यामत खेज महंगाई ने सफ़ेद पोश तबके को भी अपनी लपेट में ले लिया। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने की वजह से अशिया खुरनोश भी पहुंच से दूर हो गई। कोई पूछने वाला नहीं। नज़ीर अहमद खरल की रिपोर्ट देखिए। पाकपतन शरीफ में क़यामत खेज महंगाई ने दिहाड़ीदार और गरीब आवाम के साथ साथ अब सफेद पोश तबके को भी अपनी लपेट में ले लिया। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने की वजह से जरूरत जिंदगी की हर चीज पर असर पड़ा है। कुछ माफिया ने इसमें अपना रोल अदा किया हुआ है। आजकल माफिया को पूछने वाला ही कोई नहीं है। जो चीज महंगे दामों बेचनी है, चंद दिन जखीरा करके फिर अपनी मर्जी से इसे बेचते भी हैं। हाई क्लास है, अपर क्लास है, उनको फर्क नहीं पड़ता। जो लोअर क्लास है उनको भी किसी हद तक फर्क तो ऑब्वियसली सबको ही पड़ता है। लेकिन जो हम जैसे सफेद पोश तबका है, जो व्हाइट कॉलर जॉब्स कर रहे हैं, सफेद पोश तबका सबसे डायरेक्टली जो है ना वो असरअंदाज होता है। महंगाई में पिसी आवाम का मजीद कहना है हुकूमत के साथ साथ इंतजामिया भी अपना रोल अदा करे। जो जखीरा अंदोजी करके बेचते हैं इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करें। महंगाई में पिसी आवाम का हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि बराए मेहरबानी इशाए खरीदो नोश की कीमतों में नुमाया कमी की जाए ताकि हम अपने बच्चों के लिए 2 वक्त का खाना तो घर में बासानी पका सकें। कैमरामैन राशिद हंजरा के साथ नज़ीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ, सच टीवी, पाकपतन शरीफ। डस्का में महंगाई का जिन बोतल से बाहर निकल आया। अशिया खुरनोश, गोश्त और फल भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गए। बच्चों का पेट पालना इंतहाई मुश्किल हो गया। मुजफ्फर अली चौहान की रिपोर्ट देखिए। डस्का में खुद साख्ता महंगाई ने अवाम का जीना दोहबर कर दिया। सब्जियां, दालें, मुर्गी का गोश्त और खुश्क मसाला जात आम आदमी के लिए अनमोल होते जा रहे हैं, तो वहीं पर जरूरियत जिंदगी की तमाम एशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਵਾਦਾਰ ਹੋ गए हैं। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ कित्थे जाइए। एशिया खुर्दनोश की कीमतों में खुद साख्ता इजाफे से महंगाई में मजीद इजाफा देखने में आ रहा है। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि हम अपना और अपने बच्चों का पेट बआसानी पाल सकें। कैमरा टीम के साथ मुजफ्फर अली चौहान, सच न्यूज, डस्का। महंगाई का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। बदीन में मुर्गी का गोश्त गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं नासिर अहमद। मुल्क के दीगर शहरों की तरह जिला बदीन के तहसील गुलारची, मातली, तलहट, टंडोबागों में मुर्गी की कीमत में रोज बरोज बेहद इजाफा होने के बाद शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई। जिला बदीन में मुर्गी का गोश्त 650 रुपए से 700 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। पहले मुर्गी खाते थे, अब मुर्गी भी हमारे से छीन ली है। 660 रुपए किलो हम कहाँ से ले? बकरे का गोश्त वो इससे महंगा है। जिला बदीन के गरीब और मुतवसत तबके ने डिप्टी कमिश्नर बदीन और असिस्टेंट कमिश्नर से मुतालबा किया है कि मुर्गी के गोश्त की गैर मुनासिब कीमत पर नोटिस लिया जाए और प्राइस कंट्रोल कमेटी को बहाल करके योमिया प्राइस लिस्ट को यकीनी बनाया जाए ताकि गरीब दिहाड़ीदार अपने बच्चों को मुर्गी का गोश्त खिला सके। कैमरा टीम के साथ नासिर अहमद, सच टीवी न्यूज़, बदीन। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। गुजरात में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। दुकानदारों ने अशिया खुरनोश के अपने अपने रेट मुकर्रर कर लिए। होश रुबा महंगाई ने गरीब आवाम के होश उड़ा दिए। रिपोर्ट कर रहे हैं वाजिद भट्ट।
आए रोज नई से नई कीमतें आने पर गुजरात के शहरी शदीद परेशान दिखाई देते हैं। दालें, फल, सब्जियां, आटा, तमाम चीजों के रेट इतने ज्यादा हो गए, गरीब तबके की कुव्वत हरीस से बाहर हो गए। गरीब तो गरीब, अमीर तबके का भी दो वक्त का गुजर बसर करना और मुश्किल हो गया। क्लियर करो क्यों इंज करते ने। 2 रुपये गैस महंगी होंगी तो 70 रुपये बढ़ा छड़ते हैं और 4000-3500 का गैस का सिलेंडर 10 दिहाड़े नहीं करता, की करे 2-3 बच्चे वाला। दूसरे नंबर पर आटा जड़ा है वो एक गुत्थी लै जो हफ्ता नहीं निकलता, एक गुत्थी तो बाद आटा भी नहीं देंगे। अर्शिया महंगी है, प्याज महंगे ने, आलू महंगे ने, आटा महंगा है और इस अलावा घ्यो महंगा। अस किसी पास जे 800 रुपया साढ़े दिहाड़े। पहले हमें दालों की निस्बत सब्जियां बाजार से सस्ती मिल जाया करती थीं। अब सब्जियां भी हमारी कुव्वत हरीस से बाहर होती जा रही हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि हम बआसानी खरीदारी करके बच्चों का पेट भर सके। कैमरामैन टीम के साथ वाजिद बाट, साच न्यूज़, गुजरात। खैरपुर में गिरां फरोश मनमानियों पर उतर आए। मुनाफाखोर शहरियों से अशिया खुरनोश के जायद निर्ख वसूल करने लगे हैं। रिपोर्ट करेंगे अली गौहर। बढ़ती हुई महंगाई के बायस खैरपुर में आटा, चावल, दालें, घी, सब्जियां और दीगर चीजों के रेट आसमान को छूने लगे, जिससे दिहाड़ीदार तबका शदीद मुश्किलात में मुब्तला है। कोई पूछने वाला नहीं है। महंगाई इस दौर में बहुत बढ़ गई है, गरीब इंसान कहाँ से अपना वक्त बसर करे। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बढ़ती हुई महंगाई पर कंट्रोल किया जाए ताकि शहरी सुकून से 2 वक्त की रोटी खा सकें। कैमरा टीम के साथ अली गोपांग, सच न्यूज़, खैरपुर। मुल्क भर में महंगाई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। दरिया खात में अशिया खुरनोश के निर्ख आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। महंगाई ने आवाम से रोटी का निवाला भी छीन लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं तारिक खान नियाजी। तहसील दरिया खान में भी अशिया खुर्दनोश की कीमतों को पर लग गए। घी, दालें, सब्जियां, फ्रूट, प्याज सब महंगा हो गया। आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल किसी चैलेंज से कम न रहा। घी की कीमत में भी इजाफा हो गया है। गरीब बंदे तक गुजारा हुण बहुत औखा थींदा है ते गवर्नमेंट ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ भी सोचे। प्याज ने भी ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। प्याज 250 रुपए से लेकर 300 रुपए फी किलो तक फिरोख्त हो रहा है। तारिक खान नियाजी, सच टीवी, दरिया खान। यूटिलिटी स्टोर्स भी गरीब आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो गए। दीपालपुर के यूटिलिटी स्टोर पर घी नायाब हो गया। शहरी महंगे दामों ओपन मार्केट से घी खरीदने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे उयूब खाबर। वफाकी हुकूमत के जेरे साया चलने वाले यूटिलिटी गरीब आवाम को हुकूमती सब्सिडी फराहम करने में नाकाम हो गए। दीपालपुर के शहरी यूटिलिटी स्टोर्स पर घी खरीदने के लिए मुसलसल चक्कर लगाकर परेशान हो गए और बाजार से 600 रुपए किलो महंगा घी खरीदने पर मजबूर हो गए। एक माह से यहाँ पे घी नहीं है। 500-600 रुपए कमाने वाला आदमी, उससे लिए खुदाया हुकूमत से हमारी अपील है, पर जोर अपील है कि एक माह स्टोर पे किसी पे भी यहाँ घी मौजूद नहीं है। एक पूरा महीना हो गया जी यूटिलिटी स्टोर ते चक्कर लगा रहे हैं, घी नहीं मिल रहा है। वो तो जाने हैं बाजारों 600 रुपये किलो है, वो साढ़े को लिया नहीं जाता। ते मजदूर आदमी है जी, ये नहीं जो साढ़े को लिया जाता। ते इत्थे खुदारा ये मेहरबानी करके ते यूटिलिटी स्टोर ते घ्यो मिल जाए। शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। हुकूमती सब्सिडी वाला घी यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद ना होने की वजह से शहरी परेशान होकर रह गए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अयूब खावर, सच न्यूज़, दीपालपुर। महंगाई का सुनामी सब बहा ले गया। कोटी लोहारा में मुर्गी का गोश्त 650 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि महंगाई पर काबू पाने के लिए ठोस इकदाम उठाए जाएं। रिपोर्ट कर रहे हैं वहीद अहमद। दीगर शहरों की तरह कोटी, लोहारा और गिरदोनवा में मुर्गी की कीमत में रोज बरोज इजाफा हो रहा है, जिसके बाद शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। मुर्गी का गोश्त 650 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। महंगाई यानी कि हो गई है कि माड़ा बंदा हुण मुर्गी का गोश्त भी नहीं लै सकता। 650 रुपए किलो हो गया है। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ 1.5-2 ਕਿਲੋ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ 1/2 ਕਿਲੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ हुकूमत ਅੱਗੇ अपील है कि ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ध्यान दिता जाए। कोटली, लोहारा और मुख्तलिफ इलाकों में दुकानदार अपनी मन मर्जी के रेट पर मुर्गी का गोश्त फरोख्त कर रहे हैं। दुकानदार का कहना है कि सोयाबीन ब्लैक में मिल रही है, जिसकी वजह से मुर्गी की कीमत में कमी नहीं आ रही। 700-800 का देड़ी लगाने वाला मुर्गी का गोश्त किधर से खाएगा? 650 रुपए किलो है।
हम वो महंगाई कम करना चाहिए। शहरियों का कहना है कि जिले इंतजामिया ने प्राइस कंट्रोल कमेटियां तो कायम कर रखी हैं मगर नाकाम नजर आ रही हैं। अब मुर्गी का गोश्त भी आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर होता जा रहा है। वहीद अहमद, सच टीवी, कोटली लोहारा। महंगाई का तूफान थम न सका। साहिवाल में मलबूसात की कीमतें आसमान को छूने लगी। बढ़ती महंगाई ने हर चीज गरीब आवाम की पहुंच से दूर कर दी। रिपोर्ट कर रहे हैं बाबर सिद्दीकी। मुल्क भर की तरह साहिवाल में भी कपड़े की कीमत में बेपनाह इजाफे ने आम आदमी की जिंदगी मुश्किल बना दी। तन ढापना हर इंसान की बुनियादी जरूरत है मगर मौजूदा महंगाई ने अवाम से ये हक भी छीन लिया। कपड़े की कीमतों में बेपनाह इजाफे ने गरीब और दिहाड़ीदार तबके के साथ साथ सफेद पोश आदमी की जिंदगी गुजारना भी मुश्किल बना दिया। होलसेल मार्केट में कपड़े की कीमत बढ़ने से कारोबार मुतासिर हो रहा है। जो 1500 सूट था वो 2200 का सूट हो गया है। ग्राहक बहुत परेशान है। तन ढापने के लिए कपड़ा खरीदने आए हैं मगर रेट सुनकर होश खता खा गए। कीमतें इतनी बढ़ गई हैं, 2000 वाला सूट 3500-4000 रुपए का हो गया है। अब तो जिस्म ढापना भी मुश्किल हो गया। दीगर अशिया तो महंगी हैं, अब तन ढापना भी मुश्किल हो गया। बाबर सदीकी, साच न्यूज, साहिवाल। बहावलनगर के बुनियादी मरकज़े सेहत की चारदीवारी टूट फूट का शिकार हो गई। आवारा कुत्तों ने अस्पताल में डेरे जमा लिए। मरीजों ने इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट करेंगे हाफिज शब्बीर अहमद। बहावल नगर के नवाही इलाके महारवाली के बुनियादी मरकज सेहत की चार दीवारी जगह जगह से टूट फूट का शिकार है जिससे अस्पताल अमला के अलावा मरीज भी गैर महफूज हो गए हैं। मजकूरा मरकज सेहत की चार दीवारी जगह जगह से गिर चुकी है और बाकी रह जाने वाली भी गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो की मिसाल है। दूसरी तरफ चार दीवारी गिरने के बायस आवारा कुत्तों ने भी अस्पताल में अपने डेरे डाल लिए हैं जिससे बुनियादी मरकज सेहत में मुकीम स्टाफ के अलावा आने वाले मरीजों और साथ में बच्चों को भी कुत्तों के काटने का खदशा पैदा हो गया है जिससे शहरियों में तशवीश पाई जाती है। वाज़ेह रहे कि डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की रिहाइश गाह भी इसी अस्पताल में ही वाक़या है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर से पुरजोर मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर बुनियादी मरकज़ सेहत की चार दीवारी मुरम्मत कराई जाए ताकि आने वाले मरीजों के साथ साथ अस्पताल स्टाफ भी महफूज रह सकें। कैमरा टीम के साथ हाफिज शबीर अहमद कुंबो, सच न्यूज, बहावल नगर। जंड में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम का जीना बहाल कर दिया। घरेलू सार्फिन लकड़ियों और LPG पर खाना बनाने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं हाफिज मोहम्मद शफीक। जंड शहर में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। महकमा सुई गैस की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से घरेलू सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना है जबकि कई महलों में तो सारा दिन गैस का गैब रहना मामूल बन चुका है। नमाज के लिए जब हम सुबह उठते हैं तो पानी गर्म करने के लिए भी हमारे पास गैस नहीं होती है। इतना बुरा हाल है। रात को पता नहीं किस वक्त आती है, हम सोए भी होते हैं तो आती है और जब हम उठते हैं तो फिर उस वक्त नहीं होती है। 4-5 घंटे जो है वो गैस नहीं होती और बच्चे सुबह नाश्ता किए बगैर स्कूल जाते हैं। शहरियों का मजीद कहना था कि जंड शहर से चंद किलोमीटर के फासले से गैस की वाफर पैदावार होने के बावजूद हम महंगे दामों लकड़ियां और LPG गैस खरीदने पर मजबूर हैं। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर जुबैरी के साथ हाफिज मोहम्मद शफीक, जंड, अटक। डहर की मेनस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स मुनासिब देखभाल न होने के बायस नाकारा हो गए। शहरी मुजरे सेहत पानी पीने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गफूर। डेरकी के मकीनों को साफ पानी की फराहमी के लिए 2016 में करोड़ों रुपए की लागत से लगाए जाने वाला वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट इंतजामिया की नाअहली की वजह से गुज़िश्ता 7 सालों से गैर फाल है। वाटर फिल्ट्रेशन के पाइप भी नाकारा हो गए हैं जबकि प्लांट की मशीनरी समेत बिजली का ट्रांसफार्मर भी गायब है। वाटर प्लांट का तामीराती काम मुकम्मल न होने से शहरियों को आलूदा पानी फराहम किया जा रहा है। कई सालों से लोग गंदा आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। आलूदा पानी पीने से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हो रही हैं। डेरकी में जो फिल्टर प्लांट नहीं है इस वजह से ये गंदा पानी हो रहा है, लोग वो उसको पी रहे हैं, इस वजह से बहुत सी बीमारियां हो रही हैं। शहरियों ने सूबाई हुकूमत से मुतालबा किया है कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के तामीराती काम जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि शहरियों को साफ पानी मुयसर हो सके। कैमरा टीम के साथ अब्दुल गफूर, सच न्यूज, डेरकी। पेट्रोल की कीमत की ऊंची उड़ान, खानेवाल में मवेशियों की वैक्सीन का मसला संगीन हो गया। पेट्रोल की अदम दस्तयाबी के सबब डॉक्टर्स ने मवेशियों के इलाज के लिए देहातियों का रुख करना छोड़ दिया है। सलमान वड़ाइच की ये रिपोर्ट देखिए।
पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से मवेशी पाल देही काश्तकार शदीद परेशानियों का शिकार नजर आते हैं। अब उनके कीमती मवेशी महकमा लाइव स्टॉक के इलाज और वैक्सीनेशन से महरूम होते जा रहे हैं। मवेशी पाल हजरात कहते हैं, पहले जानवरों के सरकारी डॉक्टर गाँव आते थे, मवेशियों के इलाज के साथ साथ उनकी वैक्सीनेशन भी किया करते थे। जब से पेट्रोल महंगा हुआ है, बीमार मवेशियों के इलाज के लिए राब्ता करने पर कहते हैं कि उनके पास पेट्रोल नहीं, इसलिए अब वो देहातों में नहीं आ सकते, बल्कि काश्तकार अपने मवेशी खाने वाले इलाज या वैक्सीनेशन के लिए लेकर आए। 25 किलोमीटर की दूरी पर कैसे मवेशी खानेवाल लेकर जाएं। ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਡੰਗਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਾ ਜਾਓ। ਹਸਪਤਾਲ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਡਾ ਇਥੋਂ 20 ਤੋਂ 25 किलोमीटर सफर है, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਡੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। महकमा लाइव स्टॉक की मोबाइल यूनिट की गाड़ियां पेट्रोल की कमी की वजह से जानवरों के अस्पतालों में बेकार खड़ी नजर आती हैं। जी, महकमा लाइव स्टॉक की टीमें अब नहीं आ रही, पहले आते थे, अब नहीं आ रहा है। हमने उनसे राब्ता किया है तो वो कहते हैं हमारे पास पेट्रोल महंगे होने की वजह से हमारे को गवर्नमेंट ने कोई वसाइल नहीं दिया, तो हम नहीं आ सकते। पेट्रोल की बढ़ती कीमत इंसानों के साथ साथ अब बेज़बान जानवरों के लिए भी शदीद मुश्किलात का सबब बन रही है। हुकूमत पंजाब की जानिब से महकमा लाइव स्टॉक को पेट्रोल की कमी के खात्मे के जरिए ही इन संगीन मसाइल से निपटा जा सकता है। कैमरा टीम के हमरा सलमान फरीद वड़ाइच, सच न्यूज़, खानेवाल। और शरीफ में सख्तगजीदगी के वाक़यात बढ़ने लगे। आवारा कुत्तों ने शहरियों को खौफ व हिरास में मुब्तला कर दिया। इंतजामिया कुत्तों को तल्फ करने में नाकाम हो गई। रिपोर्ट कर रहे हैं हाजी मोहम्मद ताहिर थहीम। और शरीफ में आवारा कुत्तों की भरमार से शहरी और बच्चे खौफ में मुब्तला होने लगे। दिन ब दिन आवारा कुत्तों की तादाद में बेहद तक इजाफे से हर शहरी तशवीश में मुब्तला होने लगे। जगह जगह आवारा बावले कुत्तों ने डेरे जमा रखे हैं, जिसके बाद स्कूल में जाने वाले तुलबा व तालबात समेत शहरी और बच्चे खवातीन खौफ ज्यादा होने लगे। इंतजाम में है जो टस से मस नहीं होती। बावले कुत्तों ने कई बार जानवरों को काटने से जानवर हलाक हो गए और मुतअद्दिद बार शहरी बावले कुत्तों के निशाने पर आ गए। शहरियों ने मकामी इंतजामिया से मुतालबा किया है कि आवारा बावले कुत्तों को तलफ किया जाए ताकि शहरी मर्द, खवातीन और बच्चे बावले कुत्तों के काटने से महफूज रह सके। सियालकोट की अहम शाहराह खंडरात का मंजर पेश करने लगी। सालों से तामीर की मुंतजर सड़क सांस की बीमारियों को दावत देने लगी। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। फातमी शाह की ये रिपोर्ट देखिए। सालाना 1000 मिलियन अमरीकी डॉलर से जायद बरामदात करने वाले सनती और जरी शहर सियालकोट की मेन और मसरूफ तरीन शाहराहें टूट फूट का शिकार हैं। स्पेशल सिटी डेवलपमेंट पैकेज के तहत 1 अरब 10 करोड़ रुपए की लागत से सियालकोट शहर की 6 अहम सड़कों की अज़-सर-ए-नौ तामीर की जानी थी। रोडों पर तामीराती काम तो काफी महीनों से जारी हैं, लेकिन ये तामीरी काम बहुत ज्यादा सुस्त रवि का शिकार हैं, जिसकी वजह से शहरियों को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने कहा है कि रोडों पर पड़े पत्थरों और खड्डों की वजह से आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है, बल्कि बढ़ते हुए हादसात बाइसे तशवीश बनने लगे हैं। कभी पीटीआई वाला आंदा है, कभी नूली वाला आंदा है, हौसला दे के चले जाते हैं, कोई तवज्जो नहीं करते इस चीज़। कश्मीर रोड और मुरादपुर रोड मंसूबों पर काम सुस्त रवि की वजह से अभी तक इल्तवा का शिकार है, जिसकी वजह से दोनों इलाकों की आवाम मट्टी और गर्दो गुबार के हर वक्त सड़कों पर रहने से सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रही है। बूरेवाला की मुजाहिद कॉलोनी में सफाई का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। सड़कें गंदगी के जौहर में तब्दील हो गईं। ताफुन ने हिले इलाका का जीना महाल कर दिया। मोहम्मद करीम सैफी की रिपोर्ट देखिए। बुरेवाला 50,000 से जायद अफराद पर मुश्तमिल आबादी मुजाहिद कॉलोनी में सफाई की अबतर सूरत हाल ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। जगह जगह गंदगी के ढेर और खुले नाले, बहता गंदा पानी मुख्तलिफ वबाई अमराज का मूजब बन रहा है। 50,000 की आबादी में तकरीबन 8 से 10 आदमी काम करने वाले हैं। यहाँ पे कोई हाल नहीं है, यहाँ पे गंदगी है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का अमला सफाई के लिए आता तो है, लेकिन अमले की कमी की वजह से इतनी बड़ी आबादी की सफाई नामुमकिन है। कॉलोनी के मकीनों ने डीसी विहाड़ी और असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला से मुतालबा किया है कि मुजाहिद कॉलोनी की सफाई और नकासी आब का फौरी बंदोबस्त किया जाए। कैमरा टीम के हमरा टीम सैफी, सच न्यूज़, बुरेवाला। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। ठारो शाह के गर्ल्स डिग्री कॉलेज की इमारत तामीर न हो सकी। ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर गायब हो गए, जिसके बायस तालिबात को परेशानी का सामना है। रिपोर्ट कर रहे हैं तनवीर कुरैशी। ठारू शाह गर्ल्स डिग्री कॉलेज एजुकेशन वर्क्स और ठेकेदार की नाअहली की वजह से गुज़िश्ता 13 सालों से तामीर न हो सका। बिल्डिंग मुकम्मिल न होने की वजह से सैकड़ों तालिबात बॉयज कॉलेज में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। महकमा तालीम ने सैकड़ों तालिबात का तालीमी मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया है। 13 साल से
जो है ये हमारा गर्ल्स डिग्री कॉलेज जो है वो ऐसे ही पड़ा है। रीजनल डायरेक्टर नवाब शाह जो है उसने 3 मरतबा यहाँ कॉलेज का दौरा किया है और यहाँ की सारी शिकायत लिख की है, मगर अभी तक कुछ नहीं हुआ। उन्होंने वज़ीर आला सिंध सेक्रेटरी तालीम से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर गर्ल्स डिग्री कॉलेज ठारू शाह की तामीरात का काम मुकम्मल करके तालिबात का तालीमी मुस्तकबिल तबाह होने से बचाया जाए। इलाकाई खबरनामे से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सच न्यूज़।